ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ایک ایسا ملک جس کا بنایا ہوا کپڑا پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ صدیوں تک بنگال دنیا کے بہترین کپڑے بناتا رہا۔ مصر، فارس، یورپ، چین اور جاپان تک برآمد ہوتے تھے اور تجارت کی مالیت کروڑوں روپے سالانہ تھی۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہی ملک صرف را مٹیریل ایکسپورٹ کرنے کے قابل رہ جاتا ہے اور اس کی اپنی صنعت یعنی ٹیکسٹائل سیکٹر پوری طرح برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ گیمنگ نے ہماری آبد تہذیب کو تباہ کر دیا۔ جو کبھی سونا تھا وہ اب غریبی میں بدل گیا۔ ایک ایسا ملک جس میں بنائے ہوئے مل مل کے کپڑے اتنے نرم، اتنے نفیس اور اتنے خوبصورت ہوتے تھے کہ اس وقت کے یورپین ٹیکسٹائل سیکٹر کے لوگ، یورپین ٹیکسٹائل مارکیٹ اس کے اوپر رشک کرتی ہے اور اسے ہوا سے بنا ہوا باریک کپڑا کہا جاتا ہے۔ بنگال کے کاریگر اس وقت اتنا خوبصورت کپڑا تیار کرتے تھے، اتنی فائن کوالٹی کا کلوتھ وہاں بھی پریپیئر کیا جاتا ہے کہ اس کو ترکی، جاپان اور ایشیا کے دور دراز کے ممالک میں ایکسپورٹ کیا جاتا اور وہاں سے کپڑے کی ڈیمانڈ ہمیشہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ صدیوں تک بنگال دنیا کے بہترین کپڑے بناتا رہا۔ مصر، فارس، یورپ، چین اور جاپان تک برآمد ہوتے تھے اور تجارت کی مالیت کروڑوں روپے سالانہ تھی۔ اگر اس کے علاوہ ہم ممالک کی بات کریں کہ جہاں پر اس ملک کا کپڑا ایکسپورٹ کیا جاتا تھا، چائنا، جاپان اور براعظم ایشیا کے علاوہ یورپ تک کی منڈیوں میں اس ملک کا کپڑا لے جایا جاتا ہے۔ اور پھر آتی ہے ایک تجارتی کمپنی۔ اس کمپنی نے ایک ایسا طوفان مچایا کہ اس تباہی کے بعد یہ صنعت ایسی اجڑی کہ پھر کبھی آباد ہو ہی نہیں پائی۔ ابتدا میں یہ کمپنی صرف تجارت کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے مختلف علاقے فتح کیے۔ اس نے انڈیا کے اندر حکومت سنبھالی اور حکومت سنبھالنے کے بعد یہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی پاور میں آئی اور انڈیا کے لوگ حضور نہ پوچھئے، ایسی تباہی مچی کہ انڈیا میں ٹیکسٹائل سیکٹر کا نام و نشان تک ختم ہو گیا۔ جیسے جیسے برطانوی مینوفیکچرنگ بڑھی، انگریزوں نے مزید سختی کی۔ ایسٹ انڈیا کبھی اپنا ہنر استعمال نہ کر سکیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر انڈیا کی ٹیکسٹائل سیکٹر جو بہت تیزی کے ساتھ گرو کر رہا تھا، اچانک ایسا کیا ہوا کہ یہ ٹیکسٹائل سیکٹر دھڑام سے نیچے گر گیا؟ اور ایک ایسا ملک جو پوری دنیا میں کپڑے کے حوالے سے، ٹیکسٹائل سیکٹر کے حوالے سے اپنا ایک نام رکھتا تھا، اپنی ایک منفرد پہچان رکھتا تھا، ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے کاریگروں کے نام سے ایکسپورٹ کیے جاتے تھے، اور جب انگلینڈ میں صنعتی انقلاب آیا تو یہ ملک صرف اور صرف را مٹیریل ایکسپورٹ کرنے تک محدود رہ گیا۔ خام مال ہندوستان سے گیا، تیار کپڑا واپس آیا اور یوں ڈی انڈسٹریلائزیشن نے جنم لیا۔ یہ کہانی صرف تجارت کی نہیں ہے، یہ کہانی اجارہ داری کی ہے، یہ کہانی اقتدار کی ہے، یہ کہانی انتشار کی ہے، یہ کہانی اس غلبے کی ہے، یہ کہانی اس فوج کی ہے، یہ کہانی ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہے۔ انہوں نے تجارت شروع کی اور رفتہ رفتہ اس سرزمین کے حکمران بن گئے۔ یہ ہے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی داستان۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں اختر کی بودلہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل بودلہ بیشک دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس سلسلے کی پہلی قسطیں نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ ساری قسطیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اگر آپ نے تاریخ کو سمجھنا ہے تو تاریخ کنیکٹیوٹی سے سمجھ آتی ہے کہ پہلے کون سا ایونٹ ہوا، اس کے بعد کون سا ایونٹ ہوا۔ تو پہلے والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی اچھے طرح سمجھ آ جائے۔ برطانوی حکومت نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے عروج میں اتنا بڑا کردار ادا کیا کہ شاید تاریخ میں ہمیں اس چیز کی کہیں اور مثال ہی نہیں ملتی۔ برطانوی حکومت نے کمپنی کو فوج، بحری طاقت، قرضے اور سیاسی حمایت دیا۔ مقصد واضح تھا: تجارت، منافع اور ہندوستان کی دولت پر کنٹرول۔ اس کمپنی کو لڑنے کے لیے نہ صرف
फराहम की गई, बल्कि हथियार, गोला बारूद, असला और दीगर लॉजिस्टिक सपोर्ट्स भी फराहम की गई। इसके अलावा इस कंपनी को बहरी जहाज, बहरी पानी और नेवल सिस्टम तक प्रोवाइड किया गया ताकि ये कंपनी अपनी तिजारत को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। इसके अलावा बरतानवी पार्लियामेंट ने इस कंपनी के हक में ऐसे ऐसे कवानीन पास किए, हजूर मत पूछिए, आप रोने लग जाएंगे अगर आप वो सुन लेंगे कि कैसे कैसे कवानीन पास किए गए ताकि ये कंपनी ज्यादा से ज्यादा इंडिया के लोगों को एक्सप्लॉइट करे और ज्यादा से ज्यादा वहां से पैसा जनरेट करे। जुल्म तो उस वक्त हुआ जब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इस कंपनी को बाकायदा तौर पर कर्जा भी फराहम किया। यानी ये कंपनी है, उसने तिजारत करनी है, उसने वर्ल्ड पर कब्जा करना है और उसका कौमी बैंक उसको कर्ज दे रहा है। इससे अगली बात आपको हिला कर रख देगी और वो ये बात है जनाब के बरतानवी हुकूमत में फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले लोगों ने ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाई कि उस वक्त की तमाम तिजारती कंपनियों को नीचा किया जा सके और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उठाया जा सके। और इस फॉरेन पॉलिसी के बाद डच और फ्रांसीसी कंपनियों को वाकयातन में मुंह की खानी पड़ी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ी तेजी के साथ हमें तरक्की करती हुई नजर आती है। अब इस कंपनी का चूंकि सबसे बड़ा मकसद मुआशी मकसद था, यानी फिनेंशियल पर्पस था कि आपने यहाँ इंडिया में आना है, तिजारत के नाम पर यहाँ से एक्सट्रैक्शन करनी है, लूट मार करनी है, इंग्लैंड के कौमी खजाने को ज्यादा से ज्यादा माला माल करना है। तो जब ये कंपनी इक़्तिदार में आई, हजूर इसने ऐसे ऐसे काम किए कि ना सिर्फ बैंक ऑफ इंग्लैंड ने तरक्की की बल्कि खुद बरतानिया की मैशियत ने भी बहुत बड़ा अरूज पकड़ा। उस जमाने के हिंदुस्तान की टेक्सटाइल सेक्टर जो है ये गैर मामूली तौर पर मजबूत, पावरफुल और मॉडर्नाइज्ड था। यूरोपियन टेक्सटाइल मार्केट के अंदर इंडिया के कारीगरों के हाथ से बने हुए कपड़ों की इतनी डिमांड थी कि यूरोपियन इंडिया के कपड़ों के अलावा कोई और कपड़ा ना तो देखना पसंद करते थे ना खरीदना पसंद करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के आगाज में मसूलीपट्टनम के इलाके में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री कायम की जिसमें इसने बाकायदा तौर पर अपने ऑपरेशन का आगाज किया था। अब ये जो मसूलीपट्टनम का इलाका है ये दो चीजों की वजह से बड़ा मशहूर था, एक तो कलमकारी और दूसरा प्रिंटेड कपड़ों की वजह से इसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर था। लेकिन इसके बावजूद भी बंगाल का बना हुआ कपड़ा इससे भी इम्पोर्टेंट था और उसका नाम इससे भी ज्यादा गूंजता है उस टाइम में। ये जो बंगाल के कारीगर है ना हजूर, ये हाथ से कपड़ा तैयार करते थे और इनके उंगलियों और पोरों में सिलाई, कढ़ाई और कशीदाकारी की इतनी महारत छुपी हुई थी कि इनका बनाया हुआ कपड़ा पूरी दुनिया में लोग रश करते थे। लोग इस कपड़े को उठा के हाथ में मलते थे। इसकी मलामत, इसकी सॉफ्टनेस, इसकी नरमी और इसकी नफासत के ऊपर लोग हैरान होते थे। और बंगाल के कारीगरों के बनाए हुए कपड़े ये सिर्फ यूरोप में एक्सपोर्ट नहीं किए जाते हजूर, ये उस वक्त के तुर्की और इसके अलावा ईरान तक के ममालिक में ये कपड़े भेजे जाते हैं। एक बात यहाँ से वाज़ेह होती है कि हिंदुस्तान का उस वक्त का टेक्सटाइल सेक्टर पूरी दुनिया के टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर एक एस्टेब्लिश्ड सिस्टम बन चुका है। एक बात बताऊं आपको, 1730 में बंगाल का टेक्सटाइल सेक्टर इतनी एक्सपोर्ट करता था कि इसकी एक्सपोर्ट की रकम $16 मिलियन तक पहुंच चुकी थी और ये 17वीं सदी की बात है। 1730 की दहाई में बंगाल का टेक्सटाइल सेक्टर तकरीबन $16 मिलियन की एक्सपोर्ट वैल्यू रखता है। और मजेदार बात तो ये है कि इस $16 मिलियन की जो एक्सपोर्ट है उसमें 3 से 6 मिलियन रुपए का जो कपड़ा है उसकी एक्सपोर्ट इंग्लैंड के वो ताजिर जो हिंदुस्तान में रहते थे उनके जरिए से होता है। अगर आज हम इस एक्सपोर्ट की मालियत की वैल्यू को गैस करें ना तो हजूर तकरीबन 20 लाख पाउंड्स की रकम जो है ये बनती थी उस वक्त के सिर्फ बंगाल के एक्सपोर्ट सेक्टर की, और कहा 20 लाख पाउंड्स। और मजेदार बात ये है कि उस वक्त में सिर्फ 1 पाउंड भी हफ्ते में अगर कोई बंदा कमा लेता था तो उसको खुशहाल समझा जाता था। और आप अंदाजा लगाएं कि 20 लाख पाउंड की रकम कितनी ज्यादा रकम होती है। इसके अलावा बंगाल जो है वो रेशम भी एक्सपोर्ट करता था। यहाँ बड़ा
आला क्वालिटी का रेशम तैयार होता है। और इसी 1730 के साल में बंगाल में रेशम की एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है वो 6 मिलियन रुपए तक थी, और ये 6.3 मिलियन की रकम बाद में कम होती, घटती, डिक्लाइन करती, सिर्फ 3 मिलियन तक रह गई थी। एक हैरान कुन बात आपको बताता हूँ, हजूर बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजिर जब तक सिर्फ ताजिर थे ना, हुक्मरान नहीं बने थे, उस वक्त तक बंगाल के कपड़े की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, यानी इंग्लैंड के जो ताजिर हैं वो बंगाल से कपड़ा खरीदने आते थे और उसकी तलब में इजाफा हो गया, और इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि वक्ती तौर पर बंगाल और इंडिया की जो लोकल टेक्सटाइल की सनत है उसको एक दफ़ा बहुत बड़ा अरूज मिला। साल 1730 में इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर में तकरीबन 22 मिलियन रुपए तक का इजाफा हुआ था। एक अंदाजे के मुताबिक 1730 में इंडिया के अंदर ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसकी इनकम में तकरीबन 22% तक इजाफा देखने को मिला था। यानी बरतानवी तलब ने इब्तदा में इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को कमजोर नहीं किया था, बल्कि इसने अरूज पकड़ा था। उस वक्त के इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर के मुकाबले में यूरोपियन और बरतानवी टेक्सटाइल सेक्टर बिल्कुल मामूली हैसियत रखता था। उसकी वजह यह है कि इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है ये पैदावारी लिहाज से, जिद्दत के लिहाज से और नित नई तख्लीक के लिहाज से अपनी पहचान आप रखता था। इसका एक्सपोर्ट सेक्टर बढ़ रहा था, इसकी आमदन में बेपनाह इजाफा हो रहा था, कारीगर खुशहाल हो रहे थे, इंडिया तरक्की कर रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिन दुगना रात चौगुना इजाफा हो रहा था। लेकिन फिर एक ऐसी तब्दीली आई, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने इस लोकल टेक्सटाइल सेक्टर को ऐसा बर्बाद किया कि ये फिर कभी उठने का नाम ही नहीं लेता। अगली किस्त में हम ये देखेंगे कि कैसे बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी जब इक़्तिदार में आई तो उसने इंडिया की टेक्सटाइल सनत को एक सिस्टमैटिक तरीके से तबाह कर दिया। ऐसा क्या किया कि लोग जब घर से बाहर जाते थे तो उनकी लुम्मे यानी कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियां, मशीनें और पुर्जे सही सलामत होते थे। जब वो वापस आते थे तो वो मशीनें टूट चुकी होती थी। ऐसा क्या जुल्म किया जाता था उन मशीनों के साथ, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।